Hello guys, today is 27th November, and today, as you know, we are talking about the business and what topics business covered, main aspects, and we also seeing the different type of strategies seen in used in business, corporate level strategies, business at the business level managers use what strategies that we have seen, and third we are focusing on the functional level strategies. And yesterday we talked about the marketing, uh, what that marketing do, what are the aspects covered in the marketing, what did the cover in the marketing mix, 4 P's. We discussed 4 P's yesterday, and also the financial strategy, how we are using our finances, in which way we are collecting our finances, how finance strategy is important for the business, and many other things. So today we talk about the research and development strategy. Sorry for the interruption because today there is in our area locality there is called Jagrata, in which we call in Hindi. So today that program is running on behind me, so that's why the voice is coming. So don't focus on it, focus on my the topics we have discussed. So today we discuss the research and development strategy, and one more strategy, human resource strategy, that is covered under the function strategies. Okay, so what is research and development strategy? Research means we are discovering, we are acquiring the new things, or doing the research about our products and services, that how we can make our product goods and fulfill the needs of the customer, and how we can make our product more compatible, more and more easier convenient to the customer who are using that product. Okay, so and what is development? Development means we are developing our product in the new markets, in the new areas, in the new form, that is called development. Okay, so it is play a very integral part in our strategy implementation. These individuals are generally charged with developing new products and improving old products. R&D employees and managers perform tasks that includes transferring complex technology, adjusting processes to local raw material, adapting processes to local markets, and altering the product to particular taste and specifications. ओके, R&D में कौन कौन सी स्ट्रेटजीज आती हैं? हम इसमें लगा सकते हैं स्ट्रेस, बेसिक और अप्लाइड स्ट्रेटजी। रिसर्च, जिसमें हम बी लीडर और फॉलोअर्स, हम लीडर भी बन सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और जो पर्सन जो मार्केट में टॉप पे है हम उसको फॉलोअर भी कर सकते हैं। उसके बाद है हम रोबोटिक्स और मैनुअल टाइप में भी जा सकते हैं। इसमें भी हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे स्पेंड अ हाई, एवरेज एंड लो अमाउंट ऑफ मनी ऑन R&D, यूज यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स एंड प्राइवेट सेक्टर रिसर्चर्स। मतलब हम यूनिवर्सिटी के जितने भी रिसर्चर्स हैं जो कि ऑलरेडी एक्सपीरियंसड है, जो यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, हम उन्हें अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लेके आ सकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर से भी हम किसी को हायर कर सकते हैं अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंडर ही आती हैं। ठीक है, तो एक और 3-4 चीज़ें हैं जो हमें फोकस करनी चाहिए कि R&D करते हुए हमें कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं कि हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। वो गाइडलाइंस क्या है कि अगर रेट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस स्लो है एंड रेट ऑफ मार्केट ग्रोथ इज मॉडरेट है, तो हमें R&D को प्रेफर करना चाहिए। इसका क्या मतलब, वी विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश दैट इफ द टेक्निकल रेट ऑफ प्रोग्रेस, मतलब अगर टेक्निकल प्रोसेस है स्लो है, कि टेक्निकली चीज़ें ज़्यादा चेंज नहीं हो रही, अपडेशन नहीं आ रही मार्केट में, और रेट जो मार्केट की ग्रोथ है वो मॉडरेट है, ना ज़्यादा स्लो है ना ज़्यादा हाई है ना स्पीडी है, मॉडरेट भी है, तो R&D हमें उस केस में करनी चाहिए। ठीक है, R&D करने का उस टाइम में बेनिफिट क्या है? व्हाट आर द बेनिफिट ऑन दिस टाइम फॉर R&D? दैट वी कैन क्रिएट ए मोनोपोली इन द प्रोडक्ट्स, इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, बिकॉज मार्केट तेजी से बढ़ नहीं रही, मार्केट की ग्रोथ मॉडरेट है, और R&D करेंगे और टेक्निकल चेंजेस ज़्यादा आ नहीं रहे। अगर हम R&D करके कोई चीज़ अपना लें, उसका कॉपीराइट ले लें, ट्रेडमार्क ले लें, तो उस चीज़ में परफेक्ट हो जाएंगे। तो फिर वो क्या होगा, हम उस चीज़ में परफेक्ट हो जाएंगे तो वो चीज़ की हमारी मोनोपोली हो जाएगी।
ट्रेडमार्क लेने से, तो फिर हम उस प्रोडक्ट के मालिक बन जाएंगे, तो फिर उसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद एक सेकंड गाइडलाइन दी हुई है कि टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंजेस एंड मार्केट ग्रोइंग स्लोली। टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है, मार्केट पर धीरे धीरे बढ़ रही है। मतलब सॉफ्टवेयर आर चेंजिंग इमीडिएटली, बट मार्केट धीरे धीरे बढ़ रही, ग्रोथ नहीं हो रही कंपनियों में। तो इसका हम क्या कर सकते हैं? So R&D is very risky in this case because market is not growing as much and returns are not coming. But if and technology is changing immediately, if we do R&D, so we can do the R&D of that product which is already obsolete, have an obsolete technology. So we should not prefer R&D in this case. And third point is technology is changing slowly, but market growing quickly. टेक्नोलॉजी तो धीरे धीरे बढ़ रही है पर मार्केट की ग्रोथ बहुत तेज है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? R&D को वी शुड डू द R&D फ्रॉम द आउटसाइड फर्म्स, फ्रॉम अदर we can acquire the R&D firms which are doing already in this field, so we can acquire that firms. Okay, and fourth point is if technical process and market growth are fast, market growth भी बहुत तेज है और टेक्निकल प्रोसेस भी बहुत तेज है, तो हमें क्या करना चाहिए? जो R&D में एक्सपर्टीज फर्म है उसको एक्वायर कर लेना चाहिए। ठीक है, थर्ड और फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा मिक्सिंग में अच्छी है, तो हम इसको ध्यान देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी की। ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी क्या बोलती है? ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी, HR strategy, also known as HR strategy. HR is a person which manages all the employees, all the team leaders in the organization. He maintains diversity. He maintains all the people, cooperation, teamwork, maintain unity between the members who are working in the organization. So it's play very important role by the HR manager. So we should focus on the HR strategy, that how we can manage HR, and further how the HR can make the employees more productive, efficient. Okay, so we are discussing the strategy. What are the points? What are the main works HR can do? First, recruitment and selection. Second, training. He gives the training to most competent persons who are selected before the in the previous rounds. And third is appraisal of performance. HR can track the record of all the employees who are working, so that he can or she can make the appraisal of the performance or can praise the work which are done by the employee, and also helps to punish the employees which are not working properly. Compensation. Firm can usually increase the competency of its workforce by offering pay and benefit packages. So firms also give some packages, benefits to the employees so that they can ahead of the competition and can bring more capable people in our organization. Okay, so what are the roles of HR? These are the works are by HR, or roles. What are the strategic roles? Strategic roles are providing purposeful direction. What does this mean? HR can lead the persons and organization towards the desired direction. Second is building core competency. HR can help to develop the core competency by the firm. Core competency. What is core competency? The core competency is the unique strength of an organization which may not be shared by others. If the business is organized on the basis of the core competency, it is less likely to generate a competitive advantage. एक ऐसी स्ट्रेंथ होती है कोर कॉम्पिटेंसी जो कि हमें बाकी कॉम्पिटिटर से, बाकी कॉम्पिटिटर्स, बाकी जो पर्सन्स है, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है, उससे आगे रखती है। ठीक है, वो हमें एक एडवांटेज देती है जिससे कि हम मार्केट कैप्चर कर सकते हैं।
क्रिएटिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये भी एचआर का काम ही होता है। अगर वो एचआर मेन जो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, वो मशीनरी काम नहीं करती या कोई स्ट्रेटजीज काम नहीं करती, काम करते हैं लोगों को हमें अच्छे से गाइड करना जरूरी है। अगर हम लोगों को अच्छे से गाइड नहीं करेंगे तो वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो हमें उनको अच्छे से गाइड करने के लिए अच्छी स्ट्रेटजीज बनानी जरूरी है। अपने जो एचआर पर्सन है, जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की देखभाल करता है, उसको देखना, उसको संभालना, उसके रोल्स को उसको समझाना जरूरी है, ताकि वो आगे अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से डांट संभाल सके। अच्छे काम करने वाले को रिवॉर्ड्स दे और बुरे काम करने वाले को पनिशमेंट्स, ये एचआर की जिम्मेदारी होती है। अगर हम खुद डेली छोटे छोटे कामों में इंडल्ज रहेंगे तो क्या होगा, हम अपने जो मेन फोकस है अपना बिजनेस नहीं चला पाएंगे, हम एम्प्लॉयज़ में उलझे रह जाएंगे। तो हमें एक एचआर हायर करना ही होता है, ताकि वो लोगों को जो कि नीचे काम कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दे सके। और हमारा फोकस सिर्फ एचआर पे होता है। अगर कुछ भी एम्प्लॉयज़ ने गड़बड़ की तो हम एचआर को पकड़ेंगे, उसकी गर्दन काट देंगे। उसके बाद है मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। अब एम्प्लॉयज़ एक ही रीजन के नहीं होते, अलग अलग रीजन के आते हैं, अलग अलग जेंडर, अलग अलग सेक्स, अलग अलग मेल आता है, फीमेल आता है, यंग, ओल्ड, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, स्किल्ड, अनस्किल्ड, प्रोफेशनल, अनप्रोफेशनल, अलग अलग तरीके के लोग आते हैं। तो एचआर को इन डाइवर्सिटी में काम करना ही पड़ता है। उसको ये सारी डाइवर्सिटी मैनेज करनी पड़ती है कि कोई भी अपने एम्प्लॉयज़ इकट्ठे होकर एचआर को तंग ना करे और एचआर अपना जो काम है अच्छे से कर पाए। डेवलपमेंट ऑफ वर्क्स एंड एथिक एंड कल्चर, एचआर की जिम्मेवारी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के एथिक्स अगर कोई वायलेट कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, डैमेज कर रहा है, तो एचआर उसे पनिशमेंट दे। और उसे अगर कल्चर के बारे में नॉलेज ही नहीं है, एथिक्स के बारे में समझ ही नहीं है, तो ये एचआर की जिम्मेवारी बनती है कि उसे अच्छे से समझाया जाए। ओके। और फैसिलिटेशन ऑफ चेंज, अगर ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आ रहे हैं तो हमें, हमारी जिम्मेवारी बनती है एचआर को सिखाना, एचआर की जिम्मेवारी बनती है आगे अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाना, ताकि जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कोई कंप्लायंसेस चेंज हो रहे हैं, कोई जीएसटी का रेट चेंज हो रहा है, या कोई भी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, तो हमें पहले उसे सिखाना पड़ेगा ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई गलती ना हो और हर काम अच्छे तरीके से हो सके। सो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सो बाकी पॉइंट्स जो फंक्शनल गए हैं, अनदर पॉइंट्स आर डिस्कस इन अनदर वीडियो। सो टुडे वी discuss about two topics, research and development, and second is HR strategy, okay, human resource strategy. So these are the aspects covered today. So thank you guys, that's for today. So hope you like this video. You can share this video and get some knowledge from these short videos. So thank you, have a good day.